Hello children, how are you all? I hope children you all are fit and fine. So children, welcome back after the holidays. Welcome to class 3 computers. So children, before these holidays we had completed chapter 1 and we were doing chapter 2. So children, till now in chapter 1 we have learnt all about the computers. As the chapter was about computer, we had learnt what is computer. So children, by now you all must have understood what is about the computer, and you came to know about what is computer, what are the different uses of computer, where it is used, and what all you can do using the computer, as well as different parts of computer and its working. And children, other than these children, in class 2 you have also studied about storage devices, input device, output device. So these are the terms which are familiar to you all. So in this chapter children, we are not going to read anything extra. We are going to read the same things which we have already studied in our previous class. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि कंप्यूटर के बारे में हम वही चीज़ें जो हमने पिछले साल पढ़ा है वही सारी चीज़ें फिर से पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमारी डिफ़िकल्टी लेवल और भी बढ़ गया है और उसी चीज़ों को हम दूसरे हेडिंग के अंडर में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी पिछले साल भी लास्ट प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में। वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे। और लेकिन these things will be studied under another heading, that is hardware devices. As we know children, our second chapter is the components of computer. Component of computer, in this chapter we will be reading about computer hardware. So children, in our previous chapter also we have studied about component of computer. As we know, there are two components of computer. So children, let us start from the beginning. So children, till now let us recall whatever we have studied till now. तो सबसे पहले जो भी अभी तक हमने पढ़ा है एक बार उसे हम recall कर लेते हैं, then we'll move further in the chapter 2. So children, in chapter 1 we studied what is a computer. What is a computer? Now, what is a computer children? So here we are going to write the definition of a computer. So what do you mean by definition children? Definition means the sentence which tells about something. So what is something here? Something is a computer. So we will write a sentence in which we will be describing exactly what a computer is. So children, अभी मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने बहुत सारे डेफिनेशंस कंप्यूटर के पढ़े हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पहले हमको पता चला कि कंप्यूटर क्या होता है, एक मशीन होता है। उसके बाद वी लर्न इट इज़ अ स्मार्ट मशीन, देन वी लर्न इट इज़ अ मैन मेड मशीन, एंड देन here we are going to learn another definition, that is computer is an electronic machine that takes data from us and gives a result after processing. So children, here we are combining three parts and making a definition of a computer. So children, as you have come to class 3 and you are studying computer since class 1, तो थोड़ी हमारी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई है। अब जो हम छोटा सा डेफिनेशन पढ़ते थे, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. So children, machine, what does it mean children? Machine का मतलब है any device which makes our work easy. कोई भी डिवाइस जो हमारे काम को आसान बनाता है. कोई भी ऐसी, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो हमारे लिए काम करती हैं और हमारे काम को आसान बनाती है. सो कंप्यूटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मशीन विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मशीन. नाउ मशीन का मतलब आपको पता चल गया, इट इज़ अ डिवाइस. इट इज़ अ डिवाइस. हम मशीन को डिवाइस भी कह सकते हैं, कोई भी डिवाइस जो हमारे काम को आसान बनाती है. उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक. अनदर वर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स समथिंग विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी.
कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एनी डिवाइस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। सो चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कोई भी मशीन, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि हमारे घर में स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल iron which is used to iron our cloth, small machine like iron to a big machine like computer। ये सारी चीज़ें, इनके बीच में बहुत सारी ऐसी मशीन है जिसे हम डेली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और वी मेक आर वर्क ईजी, वी मेक आर लाइफ कंफर्टेबल एंड दीज मशीन्स आर चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट मेनी टाइम। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, आयरन हो गया आपका, मिक्सर ग्राइंडर हो गया आपका, टोस्टर हो गया, देन वी यूज़ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर, all these machines which we use in our house to make our life easy and comfortable. If you talk about comfortable children, fan हो गया, fan makes our life comfortable, then cooler हो गया, cooler also makes our life comfortable because it gives us cool air। और उसके बाद जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम आराम से पंखा चला लेते हैं या फिर हम कूलर चला लेते हैं, और उससे भी और भी कोई अच्छी चीज़ चलानी है तो हम एसी चला लेते हैं, जिससे और भी ज़्यादा हमको आराम मिलता है। और ये सारी मशीनें हमारे लिए कोई ना कोई काम करती है, कोई हमें हमारा एंटरटेनमेंट करती है, कोई हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है और कोई हमारे काम को आसान करती है। तो ऑल दीज कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो कंप्यूटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो ये यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहने से योर डेफिनेशन डजंट कंप्लीट्स। यहाँ पे आपका डेफिनेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहने से कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं कंप्लीट होती है। सो चिल्ड्रन, आज हैव कम टू another class, you have stepped on one more step, आप चढ़ के ऊपर आ गए हो, थोड़ी आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है, तो हम इसका डेफिनेशन को और थोड़ा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। दैट इज चिल्ड्रन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट, so here you will write that takes instruction from us, and let us discuss this much only। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज दैट टेक्स instructions, we give many instructions from us। So children, this is another part। यहाँ पे इस पार्ट से you can understand children second definition of the computer which you have already studied, that computer is a man-made machine। आपको कई बार मैंने बताया है कि कंप्यूटर इज मेड बाय मैन। कंप्यूटर मैन ने बनाया है, दैट इज वाई इट कैनॉट परफॉर्म एनी वर्क और इवन अ सिंगल टास्क विदाउट आर हेल्प। अगर हम कंप्यूटर को ऑन नहीं करेंगे, अगर हम कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, इट वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क। तो दिस पार्ट ऑफ द definition says that takes, what is that? That is computer. Computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives result, RESULT, result after processing। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमसे इंस्ट्रक्शंस लेती है और उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देती है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंप्यूटर? द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर इज टू गिव द रिजल्ट और टू गेट द रिजल्ट। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमें इससे रिजल्ट मिलता है। मीन्स वॉट एवर वर्क वी डू टू गिव, वॉट एवर वर्क वी गिव टू द कंप्यूटर, it is processed and the result is given to
us. तो यहाँ पे प्रोसेसिंग से मतलब यही हुआ चिल्ड्रन, किसी भी काम को हम इसे देते हैं और इसको देने के बाद कंप्यूटर इस काम को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें रिजल्ट देता है. तो वॉट एवर वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर, इट इज प्रोसेस्ड एंड द वर्क गिवन टू द कंप्यूटर इज इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन. हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो उस काम को करता है और हमें रिजल्ट देता है. तो चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, हम इसे इनपुट कहते हैं. हम इसमें इंस्ट्रक्शन, डेटा या चिल्ड्रन जो भी हमें काम करवाना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इसको भी हम इंफॉर्मेशन दे कह सकते हैं. वी कैन कॉल इट एज इंफॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड दिस डेटा इज is processed by the computer and we get the result. तो यहाँ पे हमारे पास हम उसे जो भी डेटा देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को वो लेकर के और जो काम करना है उस हिसाब से वो उसे मैनिपुलेट करता है and it gives the result. So second part of the definition is input and third part of the definition is output. अब children, you are very much familiar with these two words. इन दोनों वर्ड से भी आप familiar है, as we have studied about these two words in our previous class also. हमने अपने previous class में भी पढ़ा था input devices के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. सो चिल्ड्रन, इनपुट का मतलब होता है गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कुछ भी डालना, इनपुट करना. और ये इनपुट जो हम करते हैं इसको हम इनपुट कहते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं. एंड चिल्ड्रन, फॉर गिविंग दीज इंस्ट्रक्शन ऑल्सो वी नीड सम डिवाइसेस एंड दीज डिवाइसेस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर चिल्ड्रन. Different parts of the computer such as these are keyboard, mouse, then we have children joystick, then children we have microphone. सो स्कैनर है, स्कैनर हो गया हमारा, वेब कैम हो गया. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी यूज अलॉन्ग विद द कंप्यूटर. चिल्ड्रन, हम इन्हें किसी न किसी फॉर्म में हम कंप्यूटर को जब ऑपरेट करते हैं तो इन सारे पार्ट्स को यूज़ करते हैं. एंड ऑल दीज पार्ट्स आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. हम जब कोई भी काम कंप्यूटर में करते हैं उससे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना है, तो वी यूज ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एंड दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस बिकॉज वी आर यूजिंग दीज डिवाइसेस टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. हम इन डिवाइसेस को यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दैट इज वाई दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. तो यहाँ पे आप स्कैनर भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे वेब कैम भी लिख सकते हो एंड ऑल दीज about all these we have already studied. So I hope children you don't have any you must not be having any doubt in input devices. Then children, similarly we have some more parts of the computer which are used to give the result, and this result is one of the main information which we need from the computer. Children, it is one of the main function of the computer which are परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर कोई रिजल्ट हमें नहीं दे पाता, कोई काम नहीं कर पाता, तो कंप्यूटर का कोई पर्पस नहीं होता. द मेन पर्पस ऑफ द कंप्यूटर, द मेन पर्पस टू यूज द कंप्यूटर इज टू गेट द इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें, ये प्रोसेसिंग के बाद मिल रहा है, ये काम होने के बाद मिल रहा है, इसलिए हम इसको रिजल्ट कहते हैं या इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप. एक इंफॉर्मेशन विच वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, if you talk about the output devices, these are monitor, printer and speaker. So children, these are the different types of output devices. These devices are used for giving output. So children, these are the two types of
devices which are used to give the instruction or to get the information. So children, this is the complete definition of a computer. Now computer is an electronic machine. Why it is an electronic machine? Because it works on electricity, or it runs on electricity. Then children, that takes instructions from us. That means children, when you give instructions to the computer, then only it will work. अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगा तो it won't be able to perform any work. That is why children, here we can say computer depends upon human being. That is why it is better than computer. We have already studied a chapter in our previous class that computer is better than computer, but it is not. It is smarter than computer, but it is not better than human being or man. So man is better than a computer as it operates the computer. Even though computer performs very fast, it can do lot of work within fraction of time. It can remember lot of things, and which is just impossible for human beings. And also it it can do many things at a time. ये मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, एक साथ तरह तरह के काम कर सकता है, यानी इट कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ work at a time. लेकिन but still children, it is not better than man. It may be smarter than man, it is smarter than man, but it is not better than man. So whenever you give instructions to the computer, it works, and this instructions given to the computer is called input, and the devices used to give the instructions are called input devices. Input device. तो ये जितने भी डिवाइस हमने यहाँ पे लिखे हैं, कीबोर्ड, माउस, joystick, microphone, all these devices are used to give instructions to the computer. Then children, another part is output. When you give instructions to the computer, it gives us output, the result which we want from the computer. अब इस output को देने के लिए we need some devices. These devices are monitor, printer, speaker. We can get the result through monitor. On the screen, we can see it on the screen, and that can be printed using the printer. Or children, we can get result in the form of sound also. Means हम speaker से भी जैसे कि हम म्यूजिक सुन सकते हैं, या किसी कुछ भी कंप्यूटर के थ्रू वॉइस के फॉर्म में सुन सकते हैं, तो वहाँ पे भी नीड अ स्पीकर. सो चिल्ड्रन, दिस इज all about the computer. Now children, other than these children which you have studied in the previous class, was that children, the computer is divided into two main parts. What are these main parts? Or you can say children, component. Component का मतलब होता है children, the working of a computer is of two types. And this working of a computer, on the basis of the working of the computer, we call it as we can say it has two components. For example children, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, एक था हार्डवेयर और दूसरा वर्ड था सॉफ्टवेयर. सो in our previous class children, we have studied about hardware and software also. तो यहाँ पे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, these are the two components of computer. One is hardware and the other is software. So children, these are the two components of computer. When we talk about the computer children, there are two different parts. On the basis of these two parts, or the basis of these two components, it is known as hardware and software. So as we have studied in our previous chapter children, hardware is a part of the computer that can be seen एंड टच, जिसे हम छू करके फील कर सकते हैं, और जो दिखता है. तो जो दिखता है वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का. तो चिल्ड्रन, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर. तो कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम छू करके देख सकते हैं या छू करके महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. तो चिल्ड्रन, दिस आवर सेकेंड चैप्टर इज हार्ड. Our second chapter is computer.
computer hardware. So children, as we have already understood that there are some main parts of the computer. Just now children, we have discussed about two types of devices, and these devices are also parts of computer which we use while working on the computer. तो कुछ ऐसे parts हैं जो कि important parts होते हैं without which a computer cannot perform any task, and some are used when they are required according to the work which we do on the computer, and as per the need of our need we use different parts. For example children, when we play games we use joystick, and when we need to type something we need output in the form of hard copy, we use a speaker, we use printer. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमने कुछ लिखा है कंप्यूटर में और उसको हमें पेपर में प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम प्रिंटर के बिना भी काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, जॉयस्टिक के बिना भी हम दूसरे काम कर सकते हैं। हमें जॉयस्टिक की ज़रूरत सिर्फ हमें गेम खेलने के वक्त ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मॉनिटर के बिना हम काम नहीं कर सकते। अगर मॉनिटर नहीं है कंप्यूटर का तो वी कैन नॉट डू एनी वर्क इन यूजिंग अ कंप्यूटर। और अगर कंप्यूटर का CPU नहीं है तो भी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर कीबोर्ड नहीं है देन ऑल्सो वी वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास। तो यहाँ पे दीज कंप्यूटर पार्ट्स चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल CPU, देन वी हैव मॉनिटर, then we have keyboard, and lastly we have mouse. So in ये चार पार्ट जो कंप्यूटर के हैं, these are the important parts of the computer without which we cannot perform even a single task. अब इन सारे पार्ट्स को चिल्ड्रन, if you consider these parts all together we call it as computer system. इन सबको मिला करके हम कंप्यूटर को कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर हमेशा सिस्टम में ही काम करता है। हम किसी भी एक पार्ट, कंप्यूटर के पार्ट से कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इट ऑलवेज वर्क्स इन अ सिस्टम, एंड दिस system is categorized into two parts, and these two parts are children hardware and software, about which just now I told you. So dear children, in our next chapter that is computer hardware, we are going to read about hardware. तो हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा, और हम अच्छे से जानते हैं हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट होता है वो पार्ट जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम छू करके महसूस कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल पार्ट कहते हैं। हमारी बॉडी का फिजिकल पार्ट आप देख रहे हैं, मैं ऊपर से नीचे जो भी दिखाई दे रही हूँ, ये पूरा मेरा बॉडी पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल पार्ट ऑफ द इट इज़ कॉल्ड फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आप मेरे सर से लेकर के पैर तक जो भी शरीर का पार्ट मेरा देख रहे हैं आप, ये पूरा फिजिकल पार्ट कहलाता है। तो सिमिलरली चिल्ड्रन, जब हम कंप्यूटर को देखते हैं तो जो भी चीज़ें हमारे सामने दिखाई देती है हम उसे फिजिकल पार्ट कहते हैं, और उस पूरे पार्ट को हम छू करके महसूस भी कर सकते हैं, और हम देख करके बता सकते हैं कि मॉनिटर क्या है, CPU क्या है, कीबोर्ड क्या है, या फिर माउस क्या है। तो हम उसे देख भी सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, एंड दिस फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। And we also studied about software children. Software is a part of the computer which can't be seen or felt. ना हम उसे देख सकते हैं, ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं। क्या आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि चिल्ड्रन सॉफ्टवेयर आर a form of programs which are present inside the computer. Using these programs we perform different types of tasks in a computer. हमने लास्ट ईयर भी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है। हमने सॉफ्टवेयर एज अ नेम नहीं पढ़ा है, सॉफ्टवेयर के नाम से नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने दो सॉफ्टवेयर्स पढ़ा था, वन इज नोटपैड एंड द अदर इज पेंट। तो आपने अपने पिछले क्लास में नोटपैड के बारे में पढ़ा था और आपने पेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। दीज टू आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये दोनों प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अब
चिल्ड्रन, हम इन दोनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करके दो अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि नोटपैड को यूज़ करके वी कैन मेक अ डॉक्यूमेंट, हम लिखने का काम कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द टेक्स्ट एडिटर। एक बार हम उसमें लिख करके नोट्स बना सकते हैं, फिर उसको एडिट भी कर सकते हैं। समय समय पे हमें कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, या फिर हमको उसमें कुछ सही करना है, या फिर हमने कुछ गलत कर दिया है उसमें एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट और कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट एडिटर। और उसके बाद जो दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात किया चिल्ड्रन, इट इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू डू ड्राइंग और कलरिंग, दैट इज़ पेंट प्रो, MS पेंट जिसको हम कहते हैं। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम ड्राइंग कर सकते हैं और कलरिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द टू सॉफ्टवेयर्स विच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर। सो चिल्ड्रन, आई होप अभी तक आपको हार्डवेयर भी समझ में आ गया और सॉफ्टवेयर भी आ गया। तो ये इतना हमने एक बार रिकॉल कर लिया। सो लेट अस रीड ओनली अबाउट हार्डवेयर एज वी आर गोइंग टू लर्न about hardware in detail in this chapter. So children, hardware भी हमने जान लिया। It is physical part of the computer which can be seen and felt. अब children, हमने हार्डवेयर के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़ी थी जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, जिससे हम फेमिलियर हैं। अभी अभी हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको समझाया, इसलिए समझाया क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न वंस अगेन अंडर दिस टॉपिक। तो व्हाट इज अ हार्डवेयर? All the physical part of the computer is known as hardware. So let us start children. So as I told you children, hardware is the physical part of the computer. तो जब आप सोचते हो physical part के बारे में तो सिर्फ तो आप एक बार आप कंप्यूटर की तरफ देख करके सोचो कि आप कौन कौन से पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, और ये पार्ट सिर्फ कंप्यूटर के बाहर नहीं होते, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर भी हैं, वो भी हार्डवेयर है। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर खोल करके उनको देखेंगे तो वो भी हमको दिखाई देता है। तो कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर जितने भी उससे अटैच्ड पार्ट्स हैं, इन सब को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर दीज हार्डवेयर्स। सो चिल्ड्रन, अभी तक जो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट ये टॉपिक हमारे लिए नया है। दिस हार्डवेयर वर्ड इज न्यू फॉर अस, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए नो नीड टू गेट वरी, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सो चिल्ड्रन, हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर? वो हमको पता चल गया कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर की डेफिनेशन एक बार हम डिस्कस यहाँ कर लेते हैं, देन विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। सो हार्डवेयर, ऑल द physical part, PART, part of the computer, all the physical part of the computer, या फिर all the physical parts attached to the computer, all the physical parts attached, all the physical parts attached to the computer plus are collectively called as हार्डवेयर। कलेक्टिवली का मतलब एक साथ। तो चलो हम इनको पहले समझते हैं इसमें क्या क्या है। सो चिल्ड्रन, इसमें हमारे पास है ऑल द फिजिकल। मैंने बताया फिजिकल, जैसे कि हमारे बॉडी, जो मेरी बॉडी आपको दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे, मेरे शरीर पूरा जो दिखाई देता है हम इसे फिजिकल पार्ट कहते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की तरफ अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर में जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सारे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट है। तो यहाँ पे ऑल द फिजिकल पार्ट्स अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो CPU हो, माउस हो, मॉनिटर हो, जॉयस्टिक को भी अगर आप ऐड करते हो तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, ये हार्डवेयर हो गई। तो अब आई थिंक कोई भी इसमें डाउट नहीं है। फिजिकल पार्ट आपको पता है, अटैच्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और कलेक्टिवली के मतलब होता है एक साथ, सबको मिला करके।
अब हम किन किन चीज़ों को मिला रहे हैं? हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम मिलाएंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? इनपुट डिवाइसेस जुड़े होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, so all the input devices, output devices, then children what do we have? We have storage devices. अब storage device का मतलब क्या हो गया? जिससे हम डेटा को, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, storage devices. And यहाँ पे आपके बुक में एक वर्ड यूज किया हुआ है, that is, यहाँ पे आपके बुक में there is a word used, that is other components. other components का मतलब है चिल्ड्रन, यहाँ पे other components का मतलब है processing unit. processing, PROCESSING, processing unit. ये other devices में हमारे processing unit आते हैं. So children, these are the different parts of the computer. These are the different parts which are used for performing any work in the computer, and all these together are called hardware. All these together are called hardware. इन सब को मिला करके हम एक वर्ड देते हैं हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर, HARDWARE, हार्डवेयर. अब इन सारी चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया चिल्ड्रन, आपको इनपुट के बारे में मालूम है, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मालूम है, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में मालूम है, और प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मालूम है. देयर इज नथिंग न्यू इन दिस चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. गो थ्रू द चैप्टर, लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स, लर्न द डेफिनेशंस. वी विल मीट वंस अगेन in our next video. So children, अभी भी COVID-19 का खतरा टला नहीं है. So stay at home, and if it is very urgent और बहुत ज़रूरी है तभी आप घर से निकलो, और whenever you go out, you please wear mask and take all the precautionary measures to keep yourself safe and healthy. So children, thank you and have a nice day ahead.